ویلکم بیک ناظرین، اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندگان سے لاہور میں ملاقات۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بھی یہی حکمت عملی مؤثر ثابت ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ہونے والی اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، جبکہ حالیہ ترلائی امام بارگاہ حملے کے ملزم کو افغانستان میں تربیت دی گئی۔ بیرونی اور اندرونی سازشی عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں ناگزیر ہیں اور قوم کو لسانیت، صوبائیت اور قومیت کی بنیاد پر تقسیم ہونے کے بجائے متحد رہنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 سال قبل ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہوتی تھی، جس کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا تھا، تاہم اب اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان تعلق مضبوط ہے اور کوئی بھی بیانیہ اس رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ سیاسی معاملات اور قانونی کیسز کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں کریں گی اور فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد مرزا سے۔ جی شہزاد مرزا، تفصیلی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں سیکورٹی عہدیداران نے ذرائع سے میڈیا نمائندگان کو دہشت گردی کے خلاف جاری قومی حکمت عملی پر آج تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکورٹی فورسز کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ جنگ ہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد مشروط ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ حالیہ ترلائی امام بارگاہ حملے کے حوالے سے بتایا گیا کہ حملہ آور کو دہشت گردی کی تربیت افغانستان میں دی گئی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیرونی اور اندرونی سازشی عناصر کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائیاں ناگزیر ہو چکی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے واضح کیا کہ کسی کی سیاسی یا مذہبی سوچ سے قطع نظر دہشت گردی کے خلاف اتحاد وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ قوم کو لسانیت، قومیت اور صوبائیت کی بنیاد پر تقسیم ہونے کی بجائے متحد ہونا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان دراصل بلوچ عوام اور بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں ایران سے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہوئی ہے، جس کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوا ہے، تاہم اب یہ اسمگلنگ ختم ہو چکی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گڈ گورننس ہی دہشت گردی کے خاتمے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اور حالیہ اجلاس کو عین پیش رفت ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح قوم نے ملک کا حق میں متحد ہو کر دشمن کو شکست دی، اسی طرح دہشت گردی کو بھی شکست دی جائے گی۔ کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ہمارا واحد بیانیہ پاکستان ہے۔ جی ٹھیک ہے شہزاد مرزا، تفصیلی اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں واقع امام بارگاہ ختیجہ الکبریٰ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حالیہ دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور زخمیوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سے بڑی بربریت کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ سانحہ اسلام آباد پر پوری قوم سوگوار ہے اور ہر دل رنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا اور وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید نوجوانوں کی قربانی کو قوم سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ دہشت گردوں کا بزدلانہ وار فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او سمیت 4 پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ ایک ڈی ایس پی شدید زخمی ہو گئے۔ تھانیہ پنیالے کی حدود میں دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس پارٹی معمول کی گشت پر تھی کہ دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں جانی نقصان ہوا۔ شہید ہونے والوں میں ایس ایچ او فہیم ممتاز خان مروت شامل ہیں، جبکہ ڈی ایس پی پہاڑ پور سرکل عدنان شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کے فوری بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے، علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے قریبی علاقوں میں ناکہ بندی اور تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत शोहदा के अहलखाना के गम में बराबर की शरीक है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने वतन के दिफा में अपना खून बहाया और उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सरफराज बुगटी ने कहा कि एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है और रियासत के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो बंदूक उठाकर कत्ल गारत का बाजार गर्म करे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से एक इबहम पैदा करने की कोशिश की गई और ऐसा बयानिया गढ़ा गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने कभी भी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेकाम और तरक्की के लिए रियासती रेट हर सूरत कायम की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पाक फौज से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि महमूद खान अचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं है। दहशत गर्दी की इस जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। कहा कि इस्लामाबाद में खून खराबे की कोई इजाज़त नहीं। पाक फौज अपने खून से अपने हलफ की तायद कर रही है। हम सियासतदान ग्रे एरियाज़ में रह रहे होते हैं, हम पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपने मफादात और इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अगर मैं खून से खींची हुई लकीर क्रॉस करता हूं तो ऐवान में बैठने का हक नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक़ हुक्मरानी में भी अपना हिस्सा चाहिए। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का खिताब। कहा, जब आप अफगानिस्तान को 5वां सूबा कहेंगे तो आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि बंगाली फ़ौज के लिए फ़िट नहीं है। मैं इस मुल्क का बासी हूँ और जमहूरियत के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बोलूँगा। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सज़ाएँ दी और आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी करवा दी। महमूद खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि अफ़गानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है। 2026 पंजाब में यूथ का साल है। सूबाई हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। ख़वातीन हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। औरत जंग भी लड़ सकती है, जहाज़ भी उड़ा सकती है, सियासतदान भी बन सकती है। उन्होंने कहा, पंजाब में इतना टैलेंट मौजूद है कि मैदान छोटा पड़ गया। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इक़दामात कर रही है। मरीम नवाज ने कहा कि औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, मईशत भी चला सकती है, खातून वज़ीर आला भी बन सकती है और मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। मरीम नवाज ने कहा, ज़्यादती केस में 72% कमी आई। पंजाब में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की शरह इंतहाई कम हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का फौरी नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सोलर पॉलिसी, सार्फिन की मफादात और तवानाई के शूबे में तवाज़ुन बरकरार रखने के अमूर पर तफसीली गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने पावर डिवीज़न को हिदायत की कि सोलर के मौजूदा सार्फिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा में फौरी नज़रसानी अपील दायर करे ताकि पहले से तयशुदा मुआहदों का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का माली बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर मुंतकिल ना हो। इस हवाले से पावर डिवीज़न को जामे और मुतवाज़न लाहे अमल तैयार करने की हिदायत भी की गई है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मजबूत वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई सूबा विफाक की मदद के बगैर आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। 4 सदर में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्क की मौजूदा सियासी मौजी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासत पार्टियां करती हैं, जबकि हुकूमत का असल मकसद अवाम के मसाइल का हल होना चाहिए।
धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमतें सिर्फ दावा कर सकती हैं। मौजूदा हुकूमत अमन अमान और मौशी इस्तेहकाम फराहम करने में नाकाम है और पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। मुल्क की सलामती और आलमी ताल्लुकात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, ख़ास तौर पर ईरान और अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना चाहता है ताकि अपनी बालादस्ती कायम रख सके। मौलाना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तकसीम के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं और बलूचिस्तान और KPK के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं दुनिया मान चुकी है पाकिस्तान आसमानों पर राज करने वाला चैंपियन है। अगर जज्बा ईमानी हो तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें मेरिट को अपनाना होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लैपटॉप स्कीम 100% मेरिट की बुनियाद पर जारी है और नौजवानों पर सरमायाकारी दरअसल मुल्क के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ और अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। अगर कौम में जज्बा बरकरार रहे तो पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना हमारा फ़र्ज़ है और जब तक हम एक कौम की तरह मुत्तहिद रहेंगे कोई दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेस ने मुल्क की हिफाजत के लिए मजबूत बुनियादें कायम की और भारत को मार के हक़ में शिकस्त दी। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब के तमाम वसाइल बलूचिस्तान के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें की जा सकें। मरीम नवाज़ ने बलूचिस्तान के अवाम के हौसले को सराहते हुए कहा कि बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, पंजाब हर लम्हा आपके साथ है और अमन व इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कौमी निसाब कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए कहा कि कौमी निसाब की इस्लाह उड़ाने पाकिस्तान का कलीदी एजेंडा है। दुनिया में इल्म के ज़ाब्ते बदल चुके हैं और पेन लिटरेसी की जगह डिजिटल लिटरेसी ने ले ली है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नए निसाब का मकसद तलबा को फ़िक्री, सकाफती और जहनी ग़ुलामी से आज़ाद करना और रट्टे के बजाय तख्लीकी सोच, सवार करने का शऊर और तहकीक पर मबनी इल्म पैदा करना है। निसाब में नई मईशत के तकाज़ों के मुताबिक महारतों के साथ साथ शहरियत और अखलाकियात भी शामिल होनी चाहिए ताकि नई नस्ल जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए तैयार हो। एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की याफ्ता कौमें अपनी मादरी ज़बान के जरिए इल्म और तहकीक को फ़रोग़ देती हैं जबकि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी को अशराफिया के तसल्लुत के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि निसाब को कराची, लाहौर या इस्लामाबाद तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क के तूलो अर्ज़ को मद्देनज़र रखकर बनाया जाना चाहिए। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस जायद। नेपरा ने अपना फैसला जारी कर दिया है। फिक्स चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आयद किए गए। नेपरा फैसले के मुताबिक माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस जायद किए गए। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस जायद कर दिए गए। नेपरा फैसले के मुताबिक 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये, माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस जायद कर दिए गए। माहाना 7 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 125 रुपये कमी से 675 रुपये कर दिए गए हैं। माहाना 700 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 325 रुपये कमी से 775 रुपये कर दिए गए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार घोटकी के इलाके रोंती में पहुंच गए। सिक्योरिटी इक़दामात समेत ज़िले में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। अमन व अमान और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक वज़ीर दाखिला को पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। DIG लाड़काना ने बताया कि सखर और लाड़काना ऑपरेशन के आगाज़ से अब तक मजमूई तौर पर 27 डकैत हलाक और 82 ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 78 डकैतों की गिरफ्तारी अमल में आई जबकि 152 डकैतों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अब भी मौका दे रहा हूँ, जिनको कानून के सामने सरेंडर होना है वो सरेंडर हो जाएं और जो सरेंडर नहीं करेगा वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के एक बार फिर कच्चे के डाकुओं को वार्निंग। कहा कि कच्चे के इलाकों में रियासत रिट के क़याम तक मेगा ऑपरेशन निजात मेहरान पूरी कुव्वत से जारी रहेगा।
हिट करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए एक इनकलाबी और तारीखी फैसला है। नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीद और फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डेट की तकमील मुकम्मल होगी। शर्जील मेमन का कराची में मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। नादरा से मुंसलिक रजिस्ट्रेशन निज़ाम के ज़रिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। ई स्टैंपिंग निज़ाम को सिंध के अपने IT इदारे सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के सुपुर्द करना सूबे की डिजिटल खुदमुख्तारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। सोने की आलमी और मकामी मार्केटों में कीमत आज फिर बढ़ गई है, जिसके नतीजे में सोना आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। बैनुल-अक़वामी बुलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $23 का इजाफा होने के नतीजे में नई आलमी कीमत $5058 फी औंस की सतह पर पहुंच गई। मकामी सराफा बाजारों में भी फी तोला सोने की कीमत में $2300 का इजाफा कीमत $5,28,562 हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में $1,972 इजाफा हुआ। कीमत $4,53,156 की सतह पर आ गई। सोने की कीमतें बढ़ने के साथ साथ मकामी सतह पर फी तोला चांदी की कीमत में $120 के इजाफे से कीमत $8,735 की सतह पर पहुंच गई। उड़ती मिट्टी और धूल, सहरा की सख्त और चैलेंजिंग रेतली पटरियों पर ड्राइवर्स की महारत का असल इम्तिहान। सहराए चौलिस्तान में इंजनों की गरज सुनाई देने लगी। चौलिस्तान के वसीओ अरीज सहरा में रंगारंग और सनसनीखेज चौलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज हो गया है। तफसीलात के लिए देखते हैं माहम खान की रिपोर्ट। खूबसूरत सहरा में एक बार फिर हलचल। सहराए चौलिस्तान एक बार फिर रफ्तार और जोश का मरकज बनने के लिए तैयार। 21वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का बाकायदा आगाज हो गया। कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबी ने फीता काटकर चौलिस्तान जीप रैली का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई। तकरीब में मकामी इंतजामिया, मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और मोटर स्पोर्ट से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इवेंट में मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। रेस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। रैली इवेंट्स 15 फरवरी तक चौलिस्तान में मुनाकिद होंगे। मुल्क भर से माहिर ड्राइवर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के मौके पर सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जाएंगे, ताकि सयाहों को सहरा की रिवायती रंगारंगी से रोशनास कराया जा सके। चौलिस्तान जीप रैली न सिर्फ एक खेलों का मुकाबला है, बल्कि ये भावलपुर की सकाफत, सियाहत और मईशत के फरोग में भी अहम किरदार अदा करती है। माहम खान।